Good afternoon, class 11th. This is Chandrakanta and I'm going to teach you your favorite subject, psychology. Today we will discuss about chapter number 2, methods of inquiry in psychology. Before we start this chapter, I want to tell you that we just understand about the meaning of psychology, where we study that psychology is a kind of study of experiences, study about behaviors and mental processes. But still we don't know that what methods are used to study behavior and mental process. So in this chapter we will study about all scientific methods that psychologists suggest to know the behavior or experiences of a person to study about. In this chapter we will study about the scientific method that will be or is used uh, for many problematic person if they have some problems, to know their behavior, to know about their problems and to sort out their problems. We use the scientific method to sort out their problems. In psychology, when we start scientific method to know, before that we should know about that person. When we study a person in such manner, we should know about the person, his background, his present, his past and his problem. Then we will sort out his problem. So before we study about the scientific method, we should know the goals of psychological inquiry, that why we are inquiry about the person and what kind of inquiries we need. So our first topic is goals of psychological inquiry, where we explain the goals and nature of psychological inquiries, understand different types of data used for psychologists. Like any scientific research, psychological inquiry has the following goals. When we start to inquiry somebody, we should have some goals of, first one is description, prediction, explanation, control of behavior and application of knowledge, so generated in an objective manner. Let us try to understand the meaning of these all terms. In this chapter you will generally see that all kind of vocabulary words in your chapter, so we should know about something of these all terms. सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन. In a psychological study, we attempt to describe a behavior or a phenomena as accurately as possible. किसी भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन को शुरू करते समय हम उस घटना या उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं. This helps in distinguish a particular behavior from other behaviors. जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने से हमें लाभ क्या होता है? We can differentiate that behavior to another one. यही होगा, जितना ज़्यादा हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, हम उसको उतना ही जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, the researchers may be interested in observing study habits among students. एक रिसर्चर है जो कुछ एक क्लास में स्टूडेंट की स्टडी हैबिट्स को जानना चाहता है. अब स्टूडेंट्स की जो स्टडी हैबिट्स है, इसको जानने के लिए क्या सिर्फ वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ के कि आप कितने बजे पढ़ने बैठते हो बहुत होगा, या उनको क्या पढ़ना पसंद है? नहीं, हमें स्टडी हैबिट्स के और भी जो बहुत सारे अप्रोचेज़ हैं उनके बारे में स्टूडेंट से जानना होगा. यानी हम क्या चाहेंगे? उनकी स्टडी हैबिट्स का डिस्क्रिप्शन चाहेंगे. तो हम उनसे क्या क्या एक्सप्लेनेशन मांगेंगे? स्टडी हैबिट्स में कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ बिहेवियर.
क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबकी स्टडी हैबिट्स जो होती है वो सेम हो। तो स्टडी हैबिट्स की जितने ज़्यादा डाइवर्जेंस है उसके बारे में हम क्लास में स्टूडेंट से पूछेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, या वो रिसर्चर जो उन बच्चों के स्टडी हैबिट्स जानना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या ढूंढेगा, वो ये देखेगा कि बच्चों के बिहेवियर कैसे कैसे हैं, क्लास में रेगुलरली कौन आता है या कौन बच्चा कम आता है, बच्चों का असाइनमेंट टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं, स्टूडेंट्स अपना होमवर्क टाइम पे करते हैं नहीं करते। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन लेंगे तभी उस बच्चे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता कर सकेंगे। क्या हम किसी स्टूडेंट का सिर्फ उसको देखकर उसकी पर्सनैलिटी के बाहरी रूप को देखकर हम उसको जज कर सकते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है? नहीं हो सकता ना। तो उसकी स्टडी हैबिट्स को जज करने के लिए हमें उसको पूरा डिस्क्रिप्शन लेना होगा। वो पढ़ने में कैसा है, वो होमवर्क टाइम पे करता है नहीं करता है, वो सेल्फ स्टडी कितनी करता है, रेगुलरली स्कूल आता है या नहीं आता है, उसका होमवर्क रिवाइज करता है या नहीं करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उससे लेनी पड़ती है। The researchers need to describe her or his meaning of study habits. बट रिसर्चर्स क्या रिसर्चर जो होगा, जो शोध करने वाला होगा, खोजी जो व्यक्ति होगा जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है किसी स्टूडेंट के बिहेवियर पर, वो रिसर्चर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है उस स्टूडेंट से जानना कि उसकी स्टडी हैबिट्स के बारे में वो क्या बताता है। Description requires recording of a particular behavior which helps in its proper understanding. जितना ज़्यादा उसके उस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में वो डिस्क्रिप्शन लेगा, उतना ही आसान उस रिसर्चर के लिए उस बच्चे की हेल्प करना संभव हो पाएगा। सेकंड आता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब पूर्व कथन, या हम पूर्वानुमान लगाएं या एक अंदाज़ा या कल्पना करते हैं कि वो स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में। तो साइकोलॉजी का सेकंड गोल क्या होगा कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन करना। The second goal of scientific inquiry is prediction of behavior. If you are able to understand and describe the behavior accurately, you come to know the relation of a particular behavior with other type of behaviors, events or phenomena. क्या कह रहे हैं, अगर हम किसी स्टूडेंट के बारे में ये जानते हैं कि वो क्लास का सबसे शैतान बच्चा है, तो हम उसके उस बिहेवियर की वजह, उसके बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में एक पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा पढ़ने में क्यों है। जैसे आपने एक स्टूडेंट से सवाल किया कि आप क्लास के सबसे होशियार बच्चे हैं, आपकी रिपोर्ट कार्ड बता रहा है, तो आपकी स्टडी हैबिट्स क्या हैं, यानी कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो बच्चा कहेगा कि मैं स्कूल के बाद में घर जाता हूँ, थोड़ी देर खेलता हूँ और उसके बाद में पढ़ने बैठ जाता हूँ, 3-4 घंटे रेगुलरली होमवर्क के अलावा पढ़ाई करता हूँ। तो हमने उस बच्चे के बारे में उससे डिस्क्रिप्शन लेने के बाद में उसके बारे में ये पूर्वानुमान लगा लिया कि उस बच्चे का घर का होम एनवायरनमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव है टूवर्ड्स स्टडी। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसका एक और आप एग्जाम्पल देखिए। For example, on the basis of study, a researcher is able to establish a positive relationship between the amount of study time and achievement in different subjects. स्टूडेंट का जो स्टडी टाइम है, जैसे जो जितना ज़्यादा हमें हमारे घर पे और स्कूल में भी कहा जाता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, यानी हम जितना टाइम पढ़ाई को देंगे उसका सीधा असर किस पर आएगा, अचीवमेंट्स पे आएगा। हम ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा नंबर आएंगे, कम पढ़ेंगे तो कम नंबर आएंगे। तो एनी रिसर्चर कैन डिस्क्राइब particular relationship or a particular behavior study. Later, if you can to know that a particular child devotes more time for study, you can predict that the child is likely to get good marks in the examination. Prediction becomes more accurate with the increasing number of persons observed. Understand? The third goal of the scientific inquiry is explanation. Explanation means व्याख्या करना. The third goal of psychological inquiry is to know the causal factors or determinants of behavior. बच्चे के पर्टिकुलर बिहेवियर की क्या वजह है उसको जानना. Psychologists are primarily interested to know the factors that make behavior occur. एक बच्चे का बिहेवियर वैसा क्यों है ये जानना एक रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है. Also, what are the conditions under which a particular behavior does not occur? या बच्चा अगर नहीं
उस पर्टिकुलर बिहेवियर को कर रहा है, यानी कि अगर वो बुरा है तो वो बुरा क्यों है, इसके पीछे की वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है। The next topic is control. The goal of psychological study is control, means नियंत्रण. If you are able to explain why a particular behavior occur, अगर कोई रिसर्चर डिस्क्रिप्शन के बाद उसके एक्सप्लेनेशन लेने के बाद में ये जान जाता है कि उसके पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह यही है, देन यू कैन कंट्रोल दैट बिहेवियर बाय मेकिंग चेंजेस. तो हम क्या करेंगे, अगर समझ लीजिए हमारा छोटा भाई या बहन है, वो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं और हम उससे पूछते हैं कि आप इस बार अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लेकर आए हैं, और थोड़ा बहुत ज़्यादा उससे एक्सप्लेनेशन लेने के बाद में हमें पता चलता है कि इस बार उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की और नंबर कम आए. अब हम क्या करेंगे, जब हमें कारण पता चल गया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी एग्ज़ाम से पहले, या हमने ये जान लिया कि इस बार उसने बहुत कम स्टडी को टाइम दिया है, तो हम उसके टाइम टेबल को चेंज करेंगे. हम उसके नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले उसे सजेस्ट कर सकेंगे कि आपको इस बार पहले की तरह कम नहीं पढ़ना है, इस बार आपको ज़्यादा पढ़ना है और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बीमार ना रहो. तो हम सजेस्ट कर सकते हैं, यानी हम उसके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. हम उसे कुछ कंडीशंस दे सकते हैं कि चलो बैठो पढ़ो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, या पर्टिकुलरली 2 घंटे, या आपको अपना टाइम टेबल बना के देता हूँ, इस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है. तो हमने क्या किया उसके लिए, मेक चेंजेस हमने उसके लिए क्या किया, कुछ सजेशंस दिए, उसके लिए कंडीशंस क्रिएट की ताकि हम उसके उस बैड जो कंडीशन है या बैड बिहेवियर है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें. कंट्रोल रेफर्स टू 3 थिंग्स. अब कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड होता है, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, रिड्यूस इट और एक्सचेंजिंग इट. हम क्या करेंगे, अगर बिहेवियर खराब है तो हम उसे चेंज या उसे सुधारने की कोशिश करेंगे. इसका एक एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल, यू कैन अलाउ द नंबर ऑफ आवर्स डिवोट्स टू स्टडी टू बी द सेम, और यू कैन रिड्यूस दैम और 3, और देयर मे बी एन इंक्रीज इन द स्टडी आवर्स. जैसे हमें ये है क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है और हमें पता चलता है, जैसे आप क्लास टीचर हैं किसी स्कूल में और आपकी क्लास के कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए सजेस्ट करेंगे कि आप अपने पढ़ाई के जो टाइम है उसको बढ़ाएं. ठीक है. The change brought about in behavior by psychological treatment in terms of therapy in person is a good example of control. अब स्टूडेंट अगर क्लास में पर्टिकुलर कुछ एक दो बच्चे हैं जो बहुत नॉटी हैं या वो पढ़ने में बहुत वीक है, तो टीचर क्या करती है, उसको पर्सनली उसका ट्रीटमेंट तो हम नहीं कहेंगे, उससे कुछ सजेशंस देती है, उसकी पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह जानना चाहती है, या कभी कभी पेरेंट्स मीटिंग बुलाती है जिसमें वो ये डिस्कस कर सके कि पर्टिकुलर जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो क्यों हो रहा है या उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है. तो टीचर हेल्प करती है. उसी तरह से जो रिसर्चर होता है जो अपने पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को सॉर्ट आउट करना चाहता है, वो उसके लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करता है. The last one is application. Application means अनुप्रयोग या उपयोग. The final goal of the scientific inquiry is to bring out positive changes in the lives of people. हम अल्टीमेटली अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम किसी रिजल्ट पर आना चाहेंगे, हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे कि भाई क्यों मैंने इतना अपना टाइम किया यूज़, जिसमें मैंने किसी स्टूडेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन लिया, डिस्क्रिप्शन लिया, उसको सजेशंस दिए, और अब मैं क्या चाहूँगी, उससे ये पूछेंगे कि आपके स्वभाव में क्या चेंजेस आए हैं, या हमारा जो ये पर्टिकुलर एक्शन था टुवर्ड्स अ पर्सन, उसका उसकी लाइफ में कितने चेंज आए, हम ये भी जानेंगे. साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंडक्टिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेटिंग्स. हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय अ साइंटिफिक मेथड. That's all about this topic, goals of psychological study. Now you can understand that what are the basic scientific research goal. The first one was description, second one was
prediction, the third one was explanation, fourth one was control, and the fifth one is application. Thank you.